Good morning, students. Today we will understand chapter 3, the false flight. The false flight means the imagination which people make, especially when they have not the capacity to do the thing. Even then, they think to make all those things only in their imagination. Actually, they are unable to do the thing. So, in this chapter, we will study about two people who are husband and wife, how they imagine to do some work. Let us start. Before starting the chapter, there are two questions given here. You answer me. How have you ever heard of a daydreamer? क्या आपने डे ड्रीमर के बारे में सुना है? डे ड्रीमर मीन्स दैट पर्सन who imagines a lot with his eyes open. Have you heard of a story of Sheikh Chilli? Sheikh Chilli की स्टोरी आपने सुना है क्या? Let us start the chapter. Sheikh Chilli and his wife lived in a village. One day, Sheikh Chilli said to his wife, "When I get some money, I will buy a cow." Sheikh Chilli says to his wife that when I will have money, then I would like to buy a cow. His wife replied, "Then I will milk the cow. When you will buy cow, I will take out the milk from cow. And to put the milk, we will need some clay pots." Sheikh Chilli says, "Yes, I will have to go to buy some clay pots." Next day, her wife, here this is a misprint, here should be his wife. Next day his wife went to market and bought some pots. Actually this all happening in their imagination, they are not really going. Sheikh Chilli asked her, what did you buy? तुमने क्या खरीदा? So she said, I bought 5 pots, one for milk, one for buttermilk, one for butter, and one for ghee. What is the 5th one for? Sheikh Chilli asked. Sheikh Chilli अपने वाइफ से पूछता है कि तुमने क्या क्या खरीदा, तो वो बताती है कि मैंने 5 पॉट्स लिया है, एक मिल्क के लिए, एक बटर मिल्क के लिए, एक बटर के लिए, एंड 1 फॉर घी, एक घी के लिए लिया है. सो शेख चिल्ली उससे पूछता है कि 5th वाला जो लिया वो किसके लिए लिया? तो सी रिप्लाइड, दैट इज़ फॉर कैरिंग सम मिल्क टू माई मदर. 5th वाले में थोड़ा सा मिल्क, कुछ मिल्क मैं अपने मदर के घर ले जाने के लिए ले आई हूँ. सो शेख चिल्ली बिकेम एंग्री. ही सेज, व्हाट, कैरी मिल्क टू योर मदर? हाउ लॉन्ग हैव यू बीन डूइंग दैट? इतने दिनों तुम कब से ये सब कर रही हो? कब से तुम मिल्क हमारे घर से पूरा अपने मदर के घर ले जा रही हो? हैव यू गॉट माई परमिशन? क्या तुमने मुझसे परमिशन मांगा? तुमने मुझसे पूछा क्या कि मैं ले जाऊं या नहीं? शाउटेड शेख चिल्ली. शेख चिल्ली ऐसा चिल्लाते हुए बोलता है. हिज वाइफ रिटोर्टेड. वाइफ आल्सो रिप्लाइड विद एंगर, देयर इज़ नो नीड फॉर योर परमिशन. मुझे तुमसे पूछने की ज़रूरत नहीं है. Sheikh Chilli's face turned red and he grabbed the pots one by one and smashed them all against the wall. और शेख चिल्ली भी गुस्सा हो जाता है और वो उस पॉट को पकड़ता है और एक एक करके सारे पॉट को स्मैश कर देता है, तोड़ देता है. The wife retorted. Wife also replied with anger, I am the one who takes care of the cows and milk it. मैं ही हूँ जो काऊ की केयर करती हूँ और मैं मिल्क निकालती हूँ. आई विल डू व्हाट आई विश विद एक्स्ट्रा मिल्क. एक्स्ट्रा मिल्क का मुझे जो करना हो वो मैं करूँ, ये मेरी मर्जी. यू फूल, आई वर्क एंड स्वेट ऑल डे एंड बाय अ काऊ एंड यू गिव अवे द वैल्यूएबल मिल्क टू योर मदर. लेकिन शेख चिल्ली उससे भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है. कहता है, पूरा दिन मैं वर्क करता रहता हूँ और इतना मेहनत करके मैंने काऊ खरीदा
और तुम हो कि ये पूरा मिल्क, इतना वैल्यूएबल मिल्क अपने मदर को देने जा रही हो। रोयड हस्बैंड, अ नेबर केम टू देयर हाउस, ही आस्क्ड द एंग्री हस्बैंड व्हाट इज़ द मैटर। तब इनकी बात को सुन के, इनके क्वेरल को सुन के एक नेबर उनके घर में आता है और पूछता है कि बात क्या है, वाई आर यू बोथ क्वेरलिंग। एक्चुअली दे हैड नॉट बॉट इवन द काउ एंड नॉट इवन द clay pots, but they were quarreling in reality. Pot had not been brought, and neither the cow was brought. Only they were shouting at each other, just by imagining. This woman is giving away the milk from our cow to her mother. The neighbor asked, your cow? जब वो नेबर आके पूछता है कि क्या हुआ, तो वो बताता है कि दिस वुमन इज़ गिविंग अवे द मिल्क फ्रॉम आवर काउ टू हर मदर। हमारे काऊ का मिल्क अपने मदर को देती है। तो नेबर बोलता है योर काऊ, वेयर इज़ योर काऊ, एट योर होम देयर इज़ नो काऊ। यस, द काऊ आई एम गोइंग टू बाय व्हेन आई हैव एनफ मनी। सो शेख चिल्ली बोलता है कि हाँ, वो काऊ जो मैं ख़रीदूँगा, वो काऊ अभी हमने लिया नहीं है, वो काऊ जब हमारे पास इनफ मनी होगा तब मैं उस काऊ को ले आऊँगा। ओह दैट वन, यू डोंट हैव अ काऊ येट डू यू, मतलब तुम्हारे पास अभी काऊ नहीं है। तो शेख चिल्ली बोलता है यस। द मैन सेड जस्ट वेट, आई एम गोइंग टू गेट वन। वो कहता है कि जस्ट वेट करो, मैं जा रहा हूँ काऊ लेने के लिए। ओह रियली, नाउ आई नो व्हाट इज़ हैपनिंग टू माई वेट। वो नेबर समझ जाता है कि ये लोग जस्ट इमेजिन कर रहे हैं कि हम काऊ ले आएंगे, फिर पॉट ले आएंगे, फिर उसकी वाइफ बोलती है कि फिर पॉट कुछ मिल्क हम अपने मदर को दे आएंगे। बस ये इमेजिन करने के बाद वो आपस में लड़ने लगते हैं कि क्यों तुम अपने मदर को मिल्क दोगी। ये बात पूरी समझ जाता है उसका नेबर और सोचता है कि चलो इसी इमेजिनेशन के बीच में हम अपना भी इमेजिनेशन इंक्लूड कर देते हैं और फिर इसके साथ कुछ इंटरटेन करते हैं। नाउ आई नो व्हाट हैपनिंग टू माई वीट एंड कॉर्न। फिर वो नेबर बोलता है अब मैं समझ गया कि मेरा वीट और कॉर्न कैसे गायब हो जाता है। एंड द नेबर पिकिंग अप अ स्टिक एंड थ्रेसिंग हिज नेबर। फिर वो नेबर एक स्टिक ले लेता है और शेख चिल्ली को पीटने लगता है। स्टॉप स्टॉप, वाई आर यू बीटिंग मी। शेख चिल्ली बोलता है कि अरे रुको, मुझे क्यों मार रहे हो। तो कहता है योर काउ इट हैज़ बीन ईटिंग ऑल द वीट एंड कॉर्न इन माई कंट्री एंड यू आर लेटिंग इट। तुम्हारी काऊ मेरा पूरा वीट एंड कॉर्न खा जाती है और तुम उसे खाने देते हो, मैं इसीलिए तुम्हें पीट रहा हूँ। तो शेख चिल्ली बोलता है व्हाट वीट व्हाट कॉर्न, किस वीट की बात कर रहे हो, कौन से कॉर्न की। अब वो इमेजिनेशन के बाहर आता है शेख चिल्ली। अब उसको समझ में आ जाता है कि अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं। तब उस इमेजिनेशन से बाहर आता है, उसको समझ में आता है कि अभी तो हमने काऊ लिया ही नहीं और मेरी काऊ कैसे जाके उसके वीट को खा सकती है। सो ही सेज दैट कौन से वीट की बात कर रहे हो, व्हाट काऊ व्हाट कॉर्न, आई एम गोइंग टू सो। तो फिर वो नेबर बोलता है अरे वो वीट जो मैं बोने जा रहा हूँ, अभी मैंने बोया नहीं है। आई एम गोइंग टू सो द वीट एंड कॉर्न, आई हैव बीन प्लानिंग इट फॉर मंथ्स। मैं पूरे मंथ से प्लान कर रहा था कि मैं उसमें वीट और कॉर्न बोऊंगा। एंड योर काऊ हैज़ बीन ईटिंग ऑल द वीट एंड कॉर्न। तुम्हारी काऊ मेरा वीट एंड कॉर्न खा जाएगी। शेख चिल्ली एंड हिज वाइफ सडनली रियलाइज द ट्रुथ। अब शेख चिल्ली और उसकी वाइफ को ये ट्रुथ रियलाइज़ होता है कि हम लोग सिर्फ इमेजिन कर करके आपस में क्वेरल किए जा रहे थे। एंड दे हैड अ हार्टी लाफ। फिर वो सभी हंसने लगते हैं। This was the story of Sheikh Chilli and his wife. Thank you.